ایک قدیم سلطنت تھی جس کے میدان وسیع، دریا صاف اور پہاڑ بلند و شاندار تھے۔ سلطنت کے بیچ ایک عظیم الشان محل تھا جہاں ہر ستون سونے سے جڑا ہوا تھا اور ہر کمرہ جواہرات سے جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ اس محل میں رہتا تھا، طاقتور، عقل مند اور عادل۔ دولت اور فوج سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر دل کی ایک خالی جگہ تھی۔ رات کے سناٹے میں جب چراغ مدھم تھے اور محل کے باغوں میں ہوائیں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کرتی تھیں، بادشاہ تنہا چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں نے سب کچھ دیکھا، دنیا کے تمام خزانے، فوج اور طاقت، مگر پھر بھی کچھ کمی سی ہے۔ اصل خوشی کہاں ہے؟ اصل سچائی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اسی وقت وزیر اعظم آیا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر، میں چاہتا ہوں کہ کسی کے ذریعے یہ سوالات حل ہوں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ وزیر نے عاجزی سے کہا، جہاں پناہ، یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ جو سچ کہے گا وہی میرے نزدیک سب سے عقل مند اور عادل ہوگا۔ پھر اعلان ہوا، جو بھی تینوں سوالوں کے درست جواب دے گا، اسے سلطنت کی عزت، دولت اور درباری مرتبہ ملے گا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ خوشی خوشی محل پہنچنے لگے۔ علماء، تاجران، سپاہی، ہر کوئی اپنی عقل اور دانائی دکھانے آیا۔ کچھ کہنے لگے، یہ موقع ہے دولت کمانے کا۔ کچھ نے کہا، یہ موقع ہے کہ بادشاہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ پہلا دن آیا، دربار سجا ہوا، ہر شخص اپنے جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ تاجر آیا اور بولا، سب سے قیمتی چیز دولت ہے، سب سے بڑی طاقت فوج میں ہے، سب سے مشکل کام دشمن کو ہرانا ہے۔ بادشاہ نے سر ہلا کر کہا، نہیں، یہ صحیح جواب نہیں۔ پھر عالم آیا اور کہا، سب سے قیمتی چیز علم ہے، سب سے بڑی طاقت عالم کے پاس ہے، اور سب سے مشکل کام کتابیں لکھنا ہے۔ بادشاہ کا دل مطمئن نہ ہوا۔ سپاہی آیا، بولا، سب سے قیمتی چیز تلوار ہے، سب سے بڑی طاقت فوج کے ہاتھ میں ہے، سب سے مشکل کام جنگ جیتنا ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ سر ہلا دیا۔ آخر میں ایک سادہ لباس، مٹی سے اٹا ہوا کسان دربار میں لایا گیا۔ لوگ ہنس رہے تھے، یہ کیا جواب دے گا؟ لیکن بادشاہ نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ یہاں سے شروع ہوئی کہانی کی اصل روح۔ کسان بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے، اور آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ دربار کے لوگ اس کی طرف دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے۔ یہ کیا جواب دے گا؟ کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ سوالات کے جواب کیسے دینے ہیں؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، ڈر مت، جو دل میں ہے وہ صاف صاف کہہ دو۔ کسان نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ بولنا شروع کیا، جہاں پناہ، میں عالم نہیں ہوں نہ امیر، لیکن جو سمجھتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پہلا سوال پوچھا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کسان نے جواب دیا، سچائی، کیونکہ سچ وہ چراغ ہے جو دل کو روشن کرتا ہے۔ جھوٹ اندھیرا ہے اور اندھیرے میں انسان راہ کھو دیتا ہے۔ سچ کے بغیر نہ ایمان باقی رہتا ہے، نہ کردار کی قدر۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیرت سے کسان کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں روشنی چمک گئی، جیسے اسے کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا، سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ کسان نے آہستہ کہا، طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ بادشاہت، فوج، دولت، یہ سب اس کی عطا ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، موت کے سامنے سب بے بس ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور اندر سے مطمئن ہوا، مگر دل میں ایک اور سوال تھا۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسان نے دل کی گہرائی سے جواب دیا، انسان کا سب سے مشکل کام اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اپنے غرور، لالچ، غصے اور خواہشات پر لگام دینا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، تم دانشمند ہو اور تمہارے دل میں سچائی ہے۔ کسان نے جواب دیا، جہاں پناہ میں کسی کا غلام نہیں، بس اللہ کا بندہ ہوں۔
लोग हैरत से देख रहे थे और दरबार में खामोशी छा गई। यही वो लम्हा था जब बादशाह ने समझा कि हकीकी हिकमत और ताकत सच्चाई और आजिज़ी में है, ना दौलत और फौज में। बादशाह ने इसे अपने करीबी मुशीर बनने की दावत दी, मगर किसान ने आजिज़ी से इनकार किया। मेरी दुनिया मेरा खेत है, मैं वहां सच्चाई के साथ रहना चाहता हूं। बादशाह ने दिल में कहा, यह शख्स सच्चा है और यही सबसे बड़ी खूबी है। मगर दुनिया के कवानीन हमेशा आसान नहीं होते। सच बोलने वाले की जिंदगी हमेशा आजमाइश से खाली नहीं रहती। चूंकि जहां रोशनी हो वहां छाया भी होती है। किसान के सच बोलने के बाद भी बादशाह ने महसूस किया कि सल्तनत में बहुत से लोग अब भी फरेब और झूठ के सहारे रहते हैं। यही वो लम्हा था जब बादशाह ने फैसला किया कि अब इसे सल्तनत में इंसाफ और सच्चाई को मजबूत करने के लिए अमली कदम उठाना होगा। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। आजमाइश और हक के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी, जो न सिर्फ किसान की वफादारी को परखेगी बल्कि बादशाह के दिल और सल्तनत के हालात को भी बदल देगी। महीने गुजर गए और सल्तनत में अमन कायम था। लोग सच और इंसाफ की कदर करने लगे। किसान की हिकमत और सच बोलने की मिसाल आम हो गई थी। मगर जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। एक रात महल के खजाने से सबसे कीमती जवाहरात गायब हो गए। चमकते हुए हीरे, सुनहरी सोने के सके कीमती जेवरात, सब गायब। महल में शोर मच गया। सिपाही दौड़ने लगे, दरवाजे बंद किए गए। हर कमरे में तलाशी ली गई मगर खजाना ना मिला। बादशाह को शदीद सदमा हुआ। इसने सोचा, अगर सच्चाई पर कायम लोग भी इस खतरे से बच ना सकें तो सल्तनत किस हाल में होगी। तमाम वज़रा, काजी और सिपाही जमा हुए। शहरी घरों से निकलकर महल के सामने जमा हो गए। खौफ और तशवीश का आलम छा गया। शक की आंखें एक बड़े ताजिर की तरफ गईं, जो असर और रसूख वाला था और महल के खजाने के कमरे के करीब पाया गया था। ताजिर कांप रहा था लेकिन झूठ बोलने की कोशिश की। मैं बेकसूर हूं, बादशाह ने कहा। हमें सच चाहिए, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। किसान को दरबार में बुलाया गया। वो सादा कपड़ों में मिट्टी से अटा हुआ खामोश खड़ा था। बादशाह ने पूछा, क्या तुम हमें सच के रास्ते पर ले जा सकते हो? किसान ने सर हिलाकर कहा, जहां पना, इंसाफ करने से पहले सच को कबूल करने का हौसला होना चाहिए। क्या दरबार में यह हौसला मौजूद है? दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग इसे हैरत से देख रहे थे। किसान ने कहा, सच्चाई वो रोशनी है जो सब अंधेरों को खत्म कर सकती है। अगर ताकतवर लोग सच से नहीं डरते तो छोटे लोग भी हक के लिए खड़े हो सकते हैं। बादशाह ने कहा, अब हमें हकीकत जाननी है। काजी ने ताजिर से पूछा, क्या तुमने खजाना चराया? ताजिर खौफ के मारे झूठ बोल बैठा। दिल कांप रहा था, जुबान रुकी हुई थी। दरबार में लोग सरगोशी करने लगे। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अब किसान आगे बढ़ा। इसने आहिस्ता और वाज़े कहा, चोरी वहां होती है जहां लालच हो, और लालच ज्यादातर ताकतवर दिल में छुपता है। दरबार में हर आंख हैरत से खिली रह गई। किसान ने मजीद कहा, जिस जगह खजाना रखा गया वहां आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। इसलिए चोर कोई बड़ा आदमी है जो समझता है कि इसे पकड़ा नहीं जाएगा। काजी ने फौरन तहकीकात शुरू की। गवाह तलब किए गए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद असल चोर सामने आया। एक शाही ओहदेदार जो हमेशा पाकीज़गी और दियानत का मुजाहरा करता था, मगर अंदर से लालची और फरेबकार निकला। लोग दोहल गए क्योंकि पहली बार ताकतवर को इसकी सजा के लिए पकड़ा गया था। ताजिर जो पहले शक के दायरे में था, रोता हुआ बोला, मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहा, लेकिन आज मैं समझ गया कि सच की ताकत सबसे बड़ी है। बादशाह ने कहा, ताकत अंधी हो जाए तो इंसाफ मर जाता है। आज हमें यह सबक मिल गया कि सच्चाई, आजिज़ी और इंसाफ के बगैर सल्तनत कभी कायम नहीं रह सकती। किसान ने मुस्करा कर कहा, जहां पना, दुनिया इम्तिहान है और सच के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, मगर अंजाम रोशन होता है। चोरी का राज खिलने के बाद दरबार में सुकून छा गया। बादशाह ने किसान की तरफ देखा और दिल में कहा, यही सच्चा इंसान है, यही हकीकी हिकमत है। सब लोग खामोश थे और ताजिर भी शर्मिंदा खड़ा था।
किसान ने आहिस्ता बोला, जहां पना, ताकत दौलत से इंसाफ नहीं आता बल्कि सच्चाई से आता है। बादशाह ने फैसला किया कि सल्तनत में हर शहरी को यह सबक मिले कि सच और इंसाफ हर हाल में लाजमी है। इसके लिए हुक्म जारी हुआ, अब से हर दरबार की समात में सच्चाई को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हर चोर, हर धोखाबाज, चाहे अमीर हो या गरीब, सजा पाएगा। लोगों में ये ऐलान सुनकर खौफ और एहतराम दोनों पैदा हुए। दरबार के ओहदेदार सोचने लगे कि ताकत और दौलत के बिल पर छुपना अब मुमकिन नहीं रहा। किसान ने बादशाह से कहा, जहां पना, ताकतवर भी इंसान है लेकिन सच के सामने सब बराबर हैं। अदालत और इंसाफ में किसी को रियायत नहीं होनी चाहिए। बादशाह ने दिल में अहद किया कि अब से वो खुद भी हर फैसला में सच और इंसाफ को तरजीह देगा। वो जानता था कि सच्चाई और इंसाफ के बगैर सल्तनत कभी कायम नहीं रह सकती। किसान अपने खेत पर वापस चला गया, मगर उसकी मिसाल हर शहरी के दिल में नक्श हो गई। लोग कहते, अगर यह शख्स सच पर कायम रह सकता है तो हम भी सच का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। सल्तनत के गोशों में आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की रोशनी फैल गई। महल के चिराग और अवाम के दिल दोनों रोशन हुए। चंद महीने बाद सल्तनत में मुकम्मल अमन कायम हो गया। लोग सच्चाई और इंसाफ की अहमियत समझ गए। किसान की हिकमत, आजिज़ी और सच्चाई सबके लिए मिसाल बन गई। बादशाह ने अपने वजीर आज़म से कहा, हमने सच की ताकत को महसूस किया है। जो शख्स सच पर कायम रहता है वो सबसे बड़ा दानिशमंद है। ताजिर जो पहले झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा था, अब सच्चाई की कदर समझने लगा। इसने कहा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहा, मगर आज मुझे समझ आया कि सच की ताकत ही सबसे बड़ी है। बादशाह ने ऐलान किया, सच की रोशनी हर दिल में फैलाई जाए। हर शहरी, अमीर आ गरीब, ताकतवर आ कमजोर, सब सच और इंसाफ के उसूल पर चली। किसान वापस अपने खेत में गया, हल चलाता रहा, नमाज पढ़ता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। इसकी जिंदगी में किसी दौलत मर्तबे की कमी न थी, क्योंकि इसके दिल में सुकून और इज्जत थी। यहां से 5 सुनहरी सबक सब के लिए वाज़े हो गए। सच्चाई सबसे कीमती खजाना है। ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अपने नफ्स को काबू में रखना सबसे मुश्किल काम है। इंसाफ में अमीर और गरीब की तमीज नहीं होनी चाहिए। झूठ वक्ती फायदा देता है मगर दायमी जिल्लत लाता है। बादशाह, वजीर, शहरी और हर कोई ये सबक दिल में बिठाकर वापस अपने अपने काम पर गया। सल्तनत में अमन, सुकून और खुशहाली कायम हुई और सच की रोशनी हर दिल में जगमगाती रही। और यूं बादशाह के 3 सवालों का जवाब न सिर्फ एक फर्द के दिल में बल्कि पूरी सल्तनत में रोशनी बनकर बाकी रह गया। सच बोलने, इंसाफ करने और अपने नफ्स पर काबू पाने का सबक हमेशा याद रखा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखी। सच की ताकत पर आप क्या सोचते हैं?